गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज डे है 2। अब मैं जा रहा हूँ भाई इवेंट के लिए। तो जा रहे हैं हम लोग एपी के, पर देखो ब्रेकफास्ट किए बिना कुछ होता नहीं है। आज जाके देखते हैं कामत में क्या मिलने वाला है। कामत एक अच्छा फूड चेन है जो ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ है और उसका खाना बहुत अच्छा है वेज वालों के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मेरे कारण तो लेट होते ही हैं। बाकी के लोगों का तो पता नहीं। 2 लोग और भी हैं जो अभी लेट हो चुके हैं, वो आएंगे लेट। और अभी जा रहा हूँ एक से मिलने, मेरी दोस्त है, उनका पूरा एयरबीएनबी है तो उन लोग को टेंशन नहीं है, मेरा होटल है तो मुझे हर जगह पे सोचना पड़ता है कैसे आना जाना है। रईस लोग हैं ना तो सब काम हो जाता है इन लोगों का। पर कोई ना, जैसा भी है जाके मिलते हैं, क्योंकि वो एक पॉइंट है जहाँ पे हम सब मिलते हैं। उसके बाद फिर आगे के लिए निकलते हैं। यहाँ से अभी हमें बहुत लंबा ट्रैवल करना है, तो इसलिए अभी हम देख रहे हैं पहले मिल जाएं, आगे का दिखाता हूँ। और बहुत अच्छी जगह है भाई, मज़ा आता है यहाँ पे घूमने के लिए। पेट भर के खाना खाया, खाना ही हो गया पूरा। मैंने ब्रेकफास्ट को तो खाने की तरह ही खा लिया भाई। तो लगती है भूख बहुत खतरनाक इधर आने के बाद। कुछ लोग हैं हमारे पास में, इतना इतना सा खाते, इतना इतना सा भाई क्या खाना खाते हैं इन लोग। मतलब ब्रेकफास्ट में भी इतना अच्छी। और यहाँ से अब निकले वापस से, कल का वही रूटीन। लोग कल एक दूसरी फिर तीसरी निकल के जाएंगे। Asked for 1 week. He said, "Give me 1 week." He said, "Give me 1 year. I'll give you 1 year." Right now, again, I'm witness to this because I'll tell you how many years he has given me. Okay, 19 years for one film and 16 years for another film, and I mention both the films. One is Munna Bhai, and the other is Three Idiots. Lage raho Munna Bhai, and I'll tell you in what sense. Tell me one studio which would not have made part 3, 4, 5, 6, of these films. Don't say that, yeah. I feel I lost a lot of money. I could have been rich. He has lost a lot of money. He has lost a lot of money, but he has one respect. Because every time he would, बहुत गालियां खाई है मैंने, बहुत मतलब गालियां दी है कि साला तू ये हो गया, तू क्या कर रहा है. But he has never said that you give me something substandard and I'll produce it. He has said that we'll do it when we have a great script that matches those films. So at no point has he pressurized us to do something which is even 10% less. That time लो जितना लेना उतना लो, लेकिन जिस दिन स्क्रिप्ट लाओगे वो उस कैलिबर की होनी चाहिए. तो that is why this immense respect that we have is due to that when he's saying 1 year, it's not only 1 year. No, I don't think any producer in the world will wait like this. I think he has done that because that's the kind of quality consciousness which is there. That cinema is like, there is in our films, there is never a murat or puja or anything. He says that whole film that he do is a puja. That is how he has lived his life. You know what I say, that a lot of people, when I was living in one room with 500 rupees a month, because I had no money, all of you knew, some of you must know my National Award story, but I'll quickly say, for how many people don't know my National Award story? Okay, many, so I will repeat. I'm glad my wife is not here, she'll kill me because I've said it too many times. First time I go on stage for National Award for Murder at Monkey Hill, I walk up like this, and there's Mr. L.K. Advani, there's the president, and I had knew that 4,000 rupees मिलेंगे. अब मैं गया तो सब डाल दिया गले में, और लिफाफा दिया तो लिफाफा बहुत पतला था. So I touched the lifafa and I said, shit, it doesn't look like 4,000 rupees.
So I ripped that lifafa open and I took out and it said 4,000 rupees encashable after 7 years. This was a postal bond that the government of India used to give that time. Imagine. Now I'm shocked. And he's here, president is here, and I'm looking at Mr. Advani, कहते sir ये तो 4,000 rupees promise किया था, ये तो क्या है? तो he also had no idea. He said, no, नहीं मिल जाएंगे ना आपको, तुम ये 8 साल के बाद तो 7-8 हज़ार मिल जाएंगे, चलिए. I said, sir, पर आपने promise किया था 4,000 rupees cash award है sir. तो है ना, हो जाएगा. You know how they just want you off the stage. I said, nahi sir, मुझे 4,000 रुपए चाहिए. आपने By then the president got involved, Mr. Venkatram. He didn't know Hindi. So he says, is there a problem, young man? I said, there's a huge problem, sir. This guy has promised 4,000 rupees. He's giving me postal order, encashable after 7 years. It's not fair. So he looks at Mr. Advani and he said, आप कल शास्त्री भवन में आइए, आपको मिल जाएंगे. He was so angry, I thought कभी नहीं देगा. So I looked at the president and I said, if he doesn't give, sir, can I call you? Because there's nobody else. So, okay, now I go to his place. Just I'll sit and he made me sit like this. I sat, there was a phone there. By the way, it was my first trip into Shastri Bhavan, and you know the government corridors, long corridors and big table, the minister is sitting there. ऐसा फोन है, ये लीजिए फोन, अपने पिताजी को फोन लगाइए. किधर है पिताजी आपके? मैंने सर कश्मीर में रहते. क्या करते हैं? मैंने सर मैनेजर, ब्रांच मैनेजर था. चलो फोन लगाइए. अब मैंने उठा लिया फोन, क्या करूं? And then he was so angry. मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये भारत का भविष्य देख रहा हूं मैं, राष्ट्रीय पुरस्कार में राष्ट्रपति के सामने 4,000 रुपए के लिए, ये है भारत का भविष्य. अरे he just went on screaming at me, and then I am what to do. So then I picked up the phone and I asked him कि सर आपने ब्रेकफास्ट किया है? Absurd question. He looks at me. क्यों? हाँ तो ये क्या सवाल है? बेहुदा सवाल कर रहे हैं आप. मैंने कहा सर बेहुदा सवाल नहीं है, आप मुझसे पूछिए क्या सवाल. क्या पूछूं आपसे? तो यही सर कि मैंने किया है. He looked at me. मैंने कहा सर मैंने नहीं किया है, मैं भूखा आया हूं. मैं पहली बार लाइफ में एयर कंडीशन चेयर कार में आया हूं, क्योंकि मुझे पता था मुझे 4,000 रुपए मिलने वाले. ये कमीज जो मैंने पहनी है, ये मैंने 1,200 रुपए उधारी लिए पैंट और कमीज के लिए कि नेशनल अवार्ड में अच्छे कपड़े पहनूंगा. तो ये मैं उनको क्या जाके बोलूंगा कि आप 1,200 रुपए मेरे से 1,600 रुपए ले लेना 7 साल के बाद. तो मैंने कहा मुझे भाषण मत दीजिए, मुझे मेरे पैसे दीजिए, नहीं तो मैं राष्ट्रपति को फोन लगाता हूँ. I was very angry. I had anger issues, as some of you know. He was so nice. He looked at me and said, क्या करोगे नाश्ते में? So I said, sir, अंडा खाऊंगा, पराठा खाऊंगा. He got me eggs and paratha. He gave me breakfast, and I want to say it publicly as many times as I can. He sent me to Golda Khana. Golda Khana में मुझे 4,000 रुपए मिले, और वो 4,000 रुपए से मेरी लाइफ अगले 5-6 महीने चली. That is how I did. So one line, because when I met him, that अच्छा था पूरा अंदर का माहौल है ना. कैसा लगा तुम्हें? बताओ रिव्यू. ये तो लेट आई इससे. तुम्हें कैसा लगा? मेरे को मज़ा आया. ये दोनों तो आ ही गई थी. तुम्हें कैसा लग रहा? बहुत मज़ा आया. कुछ लोग और भी थे जिनको हम लोग अपने साथ में कंसीडर नहीं करते किसी भी तरीके से. आते हैं नहीं आते हैं पता ही नहीं है उनका, पर ठीक है जैसा भी है. अब जो भी हो जैसा भी हो दिखा जाएगा. पर हाँ अच्छा लग रहा था भाई, चीज़ें समझे. और अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स थे, विनोद चोपड़ा जैसे बड़े प्रोड्यूसर. किसी को फिर से नेटफ्लिक्स का करना है. आज फिर से जा रहे हैं गेम खेलने के लिए, तो आज ट्राई करते हैं फिर से जाके कुछ नया हंगामा कर सके. ये अंदर कौन रो रहा है भाई?
और सुबह उठ के एक और एपिसोड देखा उसके बाद इसीलिए लेट हो गई है लेट हो गया ये आई वेंट टू हॉस्पिटल हाउ इज आंटी बेटर है प्लीज अभी कल तो अपन इतना अंदर से क्यों नहीं गए, इधर से आए? तो उसको पॉज कर नहीं पॉज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, सबको दिखाना भाई रियलिटी क्या है। ये औरत लेट क्यों हुई है? बढ़ जाएगा तुम्हारा, फोन से ट्रांसफर भी नहीं होगा, वो कहीं अपलोड होगा। अपलोड कर लिया तुमने, बना लिया? अपलोड नहीं, तो पता नहीं है भाई। मज़ेदार एरिया तो है यार घूमने के लिए। अब 3 बजे हम दोबारा से एक पिक्चर देखने के लिए जा रहे हैं, अच्छी है। और इसी में आने का थोड़ा सा ये लग रहा है। बहुत एक और चीज़ है भाई, गोवा के लोग अपने फेस्टिवल्स को लेके बहुत वो रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और वो प्रमोट भी करते हैं सब चीज़ों को। ये चीज़ें मैंने देखी क्योंकि मेरी फ्रेंड्स हैं दोनों, ये दोनों ने भी लास्ट ईयर भी लेकर आए थे फ्रेंड्स को हमारे, और इस साल मुझे भी लेकर आए क्योंकि मैं लास्ट ईयर मिस कर गया था इसलिए। पर मज़ा आया था इनके साथ में, दोस्त हैं मस्त बड़ी वाली। और उधर गेट से निकल के वापस इस गेट के अंदर ही घुसना है अब हमको कि कला अकेडमी के अंदर कुछ मिल जाए। ये क्या है? पुराने ज़माने के कैमरा है ना? तुम मीडिया वाली हो, ये बताओ क्या क्या है इस जगह पे? सबसे अच्छा कैमरा कौन सा लगता है दिखाओ, बताओ। महंगे हैं सारे। एक वो चक्री चलाने वाला भी था। बाबा कैमरे देखो कुछ बहुत अच्छे हैं। ये स्पाई कैमरा की तरह बना के रख दिया इनको उस टाइम के। एक यासिक कंपनी का भी कैमरा आता था जो अपन ने पहले देखा। इसको उठा के ले जाएं तो व्लॉग बनाने के काम आएगा। पहले की न्यूज़ रिपोर्टर वाला कैमरा कैसेट डाल के यूज़ करने के लिए। कैनन के भी कैमराज हैं, पहले ऐसे चलते थे। ओ यासिक का कैमरा, इस टाइप के कैमरे मेरे पास में भी है घर में, अभी भी एक जिंदा है। रील्स डाल के हम लोग कभी कभी फोटोज क्लिक करते हैं। जैकी दादा भी दिख रहे इधर, देखो ज़रा, किसी हीरोइन के साथ माधुरी दीक्षित मज़े लेते हुए ब्लॉगर यहाँ पे हल्ला करके गया है। कैमरा तो है, कैमरा मॉडल्स हैं जो बहुत आगे यूज़ किए जा रहे हैं। अच्छा लोगों ने शायद ही देखे हैं कुछ ऐसे मॉडल्स जो ये तो पिटबुल के गाने पे भी है साला। उस टकले ने इस कैमरे को बहुत यूज़ किया है। कैमरा की जनरेशन है। कैमरा मॉडल्स बहुत अच्छे हैं। पहले इस तरह के कैमरा चलते थे। देखिए कैमरा मैंने ऐसे वाले कैमरा ज़्यादातर वो मूवीज़ वगैरह में देखे, वो कार्टून की फिल्म्स दिखाने के लिए वो लेंस लगा के चलाते रहते थे, उनमें यूज़ में आते थे। अभी देख रहे हैं जनरेशन बहुत चेंज हो चुकी है। ऐसे कैमरा नहीं है, नहीं तो बैठ के रोल कर रहे होते, रीलें घिस रहे होते। अभी तो फ़िलहाल हम ऐसे ही शूट कर लेते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत कुछ अपग्रेड कर जाती है टाइमली। मैं तो सिर्फ दिखाने में लगा हुआ था। NMIC में भी ये कैमरास के सेट रखे हुए हैं पूरे, अगर देखना चाहोगे तो वहाँ भी दे सकते हो। नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा, वो वहाँ पे भी आप जाके पूरा देखोगे तो आपको पूरी चीज़ें मिलेंगी। और हमारे सास वाले सब सेट और ये पूरे लगे पड़े हैं। और ये पागल औरतें बस बुराई करते हुए दिख रही हैं। नया कलेश चालू हुआ है हमारे बीच में कुछ लोगों के चलते। दोबारा से अंदर से बाहर आए हैं, कुछ कर लेंगे अब जाके, सोच रहे हैं, पर देखा जाएगा आगे। ये समोसे खाने चले क्या? समोसे खाने आगे उधर समोसे मिलते हैं यार अच्छे। किधर? ये इधर आगे दुकान है। वो तुम लोग वो वाइन की शॉप दिखा रहे थे ना, लेकर वाली, उसके बाजू में अंकल समोसे बढ़िया बनाते हैं।
वहाँ पे हाँ तो पाव ऑटो मिलता से ही है। फूलने वाली दुकान। भाई लोग फिर छोड़ के भाग गए, बहुत दुश्मन लोग हैं हमारे साथ में। कोई नहीं, अपना भाई अपने साथ में है तो टेंशन नहीं है, आराम से घूमेंगे हम लोग दोनों हमारे बर्गमैन में, जो गोवा का ही है, को लेके हम लोग निकलेंगे धीरे धीरे चक्कर काटते हुए आगे। आज का पूरा कार्यक्रम इधर ही पे था जहाँ पे बैठ के हम लोग ने लिया। अच्छा था, शूट करके आए। अब जल्दी जल्दी भाग के जाएंगे इधर से। देखो शोले में यही गाड़ी थी, ठीक है, जिसमें दोनों भाग गए थे निकल के, बसंती को भी घुमाने निकले थे। हम लोग कोई भी काम सीधे तरीके से नहीं कर सकते, तो इलीगल काम ही करने जा रहे हैं। इलीगल नहीं है ये। ये लोग घूम के ना जा रहे तो शॉर्टकट मार रहे, देखो पूरा। बताना इफी की कमेटी को ये दो Then you have shortcuts. Why do you need a long cut? इधर से सीधे वो पर्दे को घुस के इन लोग जाएंगे उधर पार। अयो मार भी रहे थे। मैंने गाड़ी के नीचे फेंक देना है तुमको, घर ये- पे माँ बाप नहीं पूछेंगे। वो ये है वो सच्चाई दादा जानने की पैसे कोशिश लगा की। देंगे तुम्हारे पापा को, पैसा आ जाएगा बहुत, मेरे को दे दो। क्या क्या बोली पता ही नहीं चला, फटफट बोल गई। इधर पर्दे से पार जाएंगे। ऐना का कॉलेज है हमारे, ये यहीं से पढ़िए स्मार्ट College इधर ये है। हाँ तो बाजू का कॉलेज के पड़ोसी वाला एरिया खाने के लिए मस्त है, बिंदास। अब देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं आज। आज का व्लॉग कुछ ऐसा खास नहीं होगा, पर इवेंट अच्छे हैं। मैंने रिकॉर्ड बहुत कम ही किए, कल ज़्यादातर चीज़ें मैंने कल दिखाई दी थी, कल के व्लॉग में डाला है। पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी कि जो आज हम लोग नई जगह पे गए तो उस जगह पे डाला, कुछ अच्छे लोगों से मिले, उन सब चीज़ों के बारे में डाल दिया। पीछे से क्रॉस करके आए वो पर्दे को, ऐसे जगह हैं अच्छी अच्छी। यहाँ पे पीछे मार्केट है भाई, अच्छा खासा, देखो दिखाता हूँ मैं तुम्हें, पूरा बना हुआ है ये वो पूरा एरिया। ज़ारा आरा मेंस लेडीज का बना हुआ है भाई, एरिया ही चेंज हो गया पूरा। इधर गेट था, ये तीनों लोगों ने ही इलीगल काम कर करके इधर से आसपास करा है। कल भी चल रहा था भाई, आज भी है। भाई मूवी अच्छी थी। हक अभी बनी है, शाजिया बानो के ऊपर बनाई गई है मूवी, बहुत अच्छी थी। बाहर आए, नेटफ्लिक्स का कंपटीशन चल रहा था जिसमें मैं नहीं, मेरी दोस्त जीती, पर अपन ने कब्जा कर लिया अपना, पीछे नहीं दिया सालों ने। बहुत ट्राई करने के बाद में मिल गया। अब यहाँ से थोड़ा बाहर निकले। आज कुछ ऐसा खास इवेंट से नहीं थे, पर मूवीज़ वगैरह अच्छी हैं, लाइफ लेसन्स को लेके, किसी की लाइफ और किसी रिलीजन को लेके। हाँ, किसी ने बहुत लाइफ में स्ट्रगल किया, आज लोगों ने उसको पहले बहुत गलत नज़रों से देखा, पर आज अच्छे वे में देखेंगे कि हाँ किसी के हक की लड़ाई लड़ी। अच्छा था बहुत। वो बोलूँगा कि वो रिलीजन के ऊपर आ जाती है बातें, पर मुझे बहुत अच्छी लगी। स्पेशली आप लोग भी जाओ देखो, और रूल्स और रेगुलेशंस के बेसिस पर बनी है तो बढ़िया है। बाकी का देखो, अभी ये शाम का टाइम है तो लाइट अच्छा सेट हुई है। और ये मैडम अपने ऑटो वाले को फ़ोन लगा के भागने वाली है। हम तो बस से ट्रैवल करेंगे धक्के खाते हुए।
में मज़ा आता है भाई। बस में ना लोकल पब्लिक से मिलो ना, बड़ी अच्छी बात होती रहती है। वो आपको गाइड करते हैं कहाँ पे जाके क्या खाना है, कहाँ की ड्रिंक्स ट्राई करना है, कहाँ अच्छा है। अभी मेरी फ्रेंड है तो उसने मुझे यहाँ पे एक जगह पे लेमन सोडा मिलता है, वैसे इतना कोई ख़ास मुझे पसंद नहीं था, पर आज भाई मैंने पी के देखा, मज़ा आ गया। लेमन सोडा था तो बहुत अच्छा है यार। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि जो यहाँ के लोकल्स के हिसाब से इंटरेक्शन करो, आपको मज़ेदार चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए। बाकी का ये फ्री ऑटो सर्विसेज है, इसी में जो इवेंट्स होते हैं ठीक है वहाँ जा सकते हो पूरे में, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाएंगे, इसका कोई चार्जेस नहीं होता। और बस भी है, तो अगर ग्रुप है आपका तो बस में निकल जाओ, नॉर्मल अकेले हो तो दूसरी लोकेशन तक जाने के लिए ऑटो है। इवन कार भी जाती है भाई, सब चीज़ें हैं भाई। बहुत ख़तरनाक सफ़र था, थक गए। मिलते हैं कल नए जगह के साथ में। भाई आज कुछ नहीं था, सेम चीज़ें रिपीटेड थी। हमने मूवी देखा, अच्छी थी, मूवी देख के कंप्लीट किया। अब थोड़ा बहुत कुछ लेने आए हैं, लेंगे, ख़त्म करेंगे, चलते हैं। बाय बाय, मिलते हैं कल फिर से नए ब्लॉग के साथ।